روہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دورہ جنوبی پنجاب۔ بلاول بھٹو زرداری آج شام ملتان پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری بلاول ہاؤس ملتان میں قیام کریں گے۔ بلاول بھٹو لانگ مارچ سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کھر ہاؤس کوٹ ادو جائیں گے، جہاں پر وہ ہنا ڈبانی کھر کے والد کا اظہار تعزیت کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو گیلانی ہاؤس میں ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے۔ گیلانی ہاؤس اور بلاول ہاؤس میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ بلاول بھٹو کا یہ دورہ 2 روزہ دورہ ہے ساؤتھ پنجاب میں، جہاں پر وہ اہم معاملات ڈسکس کریں گے اور ان کی اہم مصروفیات بھی بتائی جا رہی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج شام بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملتان پہنچیں گے اور 2 دن یہاں پر قیام کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری آج شام ملتان پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری بلاول ہاؤس ملتان میں قیام کریں گے۔ بلاول بھٹو لانگ مارچ سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کھر ہاؤس کوٹ ادو جائیں گے۔ بلاول بھٹو گیلانی ہاؤس میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ گیلانی ہاؤس اور بلاول ہاؤس میں تیاریاں عروج پر۔ آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دورہ جنوبی پنجاب۔ 27 فروری کو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کراچی سے شروع ہوگا۔ سابق وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سینٹ یوسف رضا گیلانی کی روہی سے گفتگو، کہا کہ گیلانی ہاؤس میں ورکرز کنونشن ہوگا، مارچ پورے ملک سے ہوتا ہوا اسلام آباد جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں امجد ملک سے۔ امجد ملک، کہیے گا یوسف رضا گیلانی کا کیا کہنا ہے مارچ سے متعلق؟ جی بالکل، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جنوبی پنجاب کا اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک طرف لانگ مارچ کے حوالے سے یہ دورہ جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آج شام کو ملتان پہنچیں گے اور اس کے علاوہ ملتان میں گیلانی ہاؤس میں جو ورکرز کنونشن ہوگا اس سے بھی خطاب کریں گے، اور اس کے علاوہ دیگر جو انتظامی امور ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے وہ بھی دیکھیں۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب۔ سر، ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے جو لانگ مارچ جو ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے بلاول بھٹو صاحب جنوبی پنجاب کو دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ لانگ؟ دیکھیں، جو لانگ مارچ کا ڈیسیجن ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا ہے، اور وہ 27 فروری کو کراچی سے شروع ہوگا اور ٹوٹل پورے ملک سے ہوتا ہوا اسلام آباد جائے گا۔ اور ملتان کے لیے آج بلاول بھٹو صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں اور کل بھی یہیں ہوں گے، اور 10 تاریخ کو 11 بجے یہاں گیلانی ہاؤس میں جنوبی پنجاب کا پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن ہوگا، اور وہ تیاریوں کی بابت ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور جو ان کے لیٹسٹ انسٹرکشنز ہوں گے ان کو فالو کیا جائے گا۔ اچھا سر، یہ دورہ جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ جنوبی پنجاب کی اہم سیاسی شخصیات بھی پیپلز پارٹی میں کیا شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو آلریڈی شامل ہو چکی ہیں، باقی جب لانگ مارچ شروع ہوگا تو آہستہ آہستہ شامل ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک سر، جس طرح پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن قریب ہیں، دوبارہ سے سریکی وسیب علیحدہ صوبے کی گونج دوبارہ سے اٹھ چکی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی علیحدہ صوبہ بنے گا؟ دیکھیں، بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارا موقف اور ہمارا مینیفیسٹو جو تھا، ہم نے پہلے میں وزیر اعظم تھا یا پہلے آصف علی زرداری صاحب صدر تھے جنہوں نے خود اعلان کیا تھا۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی کسی پرائم منسٹر نے نہ کبھی صدر نے پہلے اعلان کیا تھا، اور ہم نے صرف اعلان نہیں کیا تھا، ہم نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز آف دا کنٹری ان کو ہم نے کنسنسس کیا، ان کو ہم نے ملایا، اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم نے سینٹ سے بل پاس کرا لیا۔ مگر چونکہ ہماری اکثریت نیشنل اسمبلی میں نہیں تھی تو اس لیے وہ عملی جامہ نہیں پہنا سکے، مگر ہمارے مینیفیسٹو پہ موجود ہے۔ سر، آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی، کیا پی ڈی ایم میں دوبارہ شامل ہونے جا رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو پرویز الہی صاحب، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب میں پرائم منسٹر بنا تھا تو میں کنسنسس پرائم منسٹر بنا تھا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو تھے سب متفق تھیں، اور پورے ہاؤس نے مجھے ووٹ دیا تھا۔ تو یہ بصیرت تھی آصف علی زرداری صاحب کی، صدر پاکستان کی، کہ انہوں نے کنسنسس ایوالو کر کے تمام پاکستان کی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے۔ تو اسی لیے ہم نے ہمیشہ
कंसेंसस की पॉलिटिक्स की है, और मैं समझता हूँ कि उनकी जो मुलाकात है लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के साथ और मरियम नवाज साहिबा के साथ और हमजा शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ इन पंजाब, तो मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है और पॉलिटिकल फोर्सेस को इनकी इन टच रहना चाहिए। इस वक्त जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं। गिलानी हाउस के अंदर बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम को मुल्तान में पहुंचेंगे और इस हवाले से जो कारकुनान हैं बहुत बेहतर अमजद मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। एक और अपडेट आप तक पहुंचाएं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने लाइसेंस फीसों में इजाफा कर दिया। अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज, जनरल फिजिशियंस, हकीम, होम्योपैथी क्लिनिक्स की लाइसेंस फीस में इजाफा कर दिया गया है। हेल्थ केयर कमीशन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से नई लाइसेंस फीस नाफिज कर दी है। जनरल फिजिशियन, हकीम, होम्योपैथी क्लिनिक की लाइसेंस फीस 5 से 10,000 कर दी गई है। नर्सिंग, मैटरनिटी होम्स की फीस को 5,000 से 25,000 रुपए कर दिया गया है। सिंगल स्पेशलिटी क्लिनिक 10,000 से 40,000 रुपए लाइसेंस फीस मुकर्रर की गई है। पोली क्लिनिक की फीस 15,000 रुपए से 50,000 मुकर्रर कर दी गई। डेंटल क्लिनिक सिंगल चेयर की लाइसेंस फीस 5,000 से 10,000 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि डेंटल क्लिनिक मल्टीपल चेयर्स के साथ लाइसेंस फीस 20 से 40,000 रुपए कर दी गई। पैथोलॉजी लैब की लाइसेंस फीस 10,000 से 50,000 रुपए कर दी गई। मेन लैब की कलेक्शन सेंटर्स के साथ लाइसेंस फीस 15 से 50,000 रुपए मुकर्रर की गई है। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम खतरे में, महकमा सेहत के मुलाजिमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। लिया में महकमा सेहत के मुलाजिमीन का एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा किया। जाहिद सरफराज से जान लेते हैं। जाहिद, क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल जी, मां बच्चे के सेहत के हवाले से शुरू किए गए प्रोग्राम IRMNCH की जो ये मुलाजमीन हैं वो इस वक्त CU हेल्थ ऑफिस के अंदर सरापा एहतजाज हैं। इन मुजाहरीन का मुतालबा है कि उनका ना तो कंट्रैक्ट एक्सटेंड किया जा रहा है, उसमें इजाफा किया जा रहा है, और ना ही उनको वादों के बावजूद परमानेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो नौकरियां वो दांव पर लगी हुई हैं। इन मुजाहरीन का मुतालबा है कि उनको फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। कुछ मुजाहरीन से बात करते हैं। बताइएगा आपको क्या मुतालबात है, क्या मुश्किलात आ रही हैं? हमारे ये मुतालबात हैं कि हमें रेगुलर किया जाए और हमें 31 दिसंबर तक हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद ना तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है। हमें ये कहा जा रहा है कि आपकी सीट पे न्यू ऐड लगेगा और उस पर आप लोगों को NTS देना पड़ेगा। हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, अब हम लोगों के लिए NTS देना बहुत मुश्किल है। हमारा गवर्नमेंट से सिर्फ यही मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए। जो रेगुलर किया जाए, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हमें रेगुलर किया जाए, हमें या कोई हमें एक्सटेंड किया जाए, हमें एक्सटेंशन की जाए। हमारी 31 दिसंबर से हमें ख़त्म हो चुकी है ना, तो इसीलिए। अच्छा, बिल्कुल मुतालबा करना है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सटेंशन दी जाए। भजन तुसा क्या आखसो, क्या मसाइल, क्या मुश्किलात हैं? हमारा भी यही मुतालबा है कि हमें जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए और हमारा फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाए और हमें तनख्वाह भी दी जाए। पिछले 2 माह से हमें फिर से तनख्वाह नहीं मिली। 6 माह पहले बंद थी, 6 माह की देने के बाद अब फिर बंद हो गई है। कितने माह की तनख्वाह नहीं? अब तकरीबन 2 माह हो गए। जी बिल्कुल जी, इन तमाम जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं, यहाँ पर मुजाहरीन का यही बताना है कि एक तो ना उनको परमानेंट किया जा रहा है, दूसरा इनकी जो 2 माह की तनख्वाहें हैं वो भी जारी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जा रही है। मुतालबा करें कि वज़ीर पंजाब जाहिद सरफराज, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर औलिया में सुई गैस की बंदिश का मसला संगीन हो गया। मुल्तान में मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन से गैस की गैर इलानिया बंदिश। मुतासरा इलाकों में कासमपुर कॉलोनी और बस्ती डोकरा शामिल। गैस बहरान के बायस शहरी महंगी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। गैस बंदिश के बायस अहले इलाकों को परेशानी का सामना है। शहरियों का एहतजाज आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। मुतासरा इलाकों में कासिमपुर कॉलोनी और बस्ती डोगरा शामिल है। गैस बहरान के बायस शहरी महंगी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ महंगाई का जिक्र कर लेते हैं। महंगाई शहरियों की जान को आई। शहरी औलिया के बासी महंगी अशिया खुरनोश और टैक्सेस की जद में आ गए। कहते हैं महंगाई के बायस जितना आवाम इस हुकूमत में पिस रही है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मजीद क्या कहना है शहरियों का, जानते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई है, जिसकी वजह से मुल्तान शहर के रहायशी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिस सिमत देखते हैं महंगाई ही महंगाई नजर आती है। बात करते हैं। बेटा इन्नी महंगाई है जेदा कोई हिसाब नहीं। 80 रुपये किलो आटा, 400 रुपये किलो घ्यो। गरीब बंदा की करे तो कितों लिया के खावे।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ नहींगा। हम तो भाईजान यही कहेंगे कि इमरान खान साहब ने बहुत महंगाई कर दी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गैस नहीं है, भूख से मर रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, खुदा के लिए खुदा का खौफ खाओ खान साहब, महंगाई को कुछ कम करो, बच्चे गरीबों के मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। गरीब आवाम है 500-600 रुपए कमाने वाली, वो भी दिहाड़ी लगी ना लगी उनकी, वो कैसे गुजारा करे, गैस है नहीं, बिल आ रहे हैं। बिल्कुल जी, यही कहा जा रहा है कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी उनमें जो है वक्त अच्छा था, गरीब जो है इतना नहीं पिस रहा था जितना इस हुकूमत में आके पिस रहा है। हुकूमत में आने से पहले कि सारी जो बातें थी वो महज झूठ थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि लोगों को जो है रिलीफ दिया जाएगा, नौकरियां दी जाएंगी, महंगाई को कम किया जाएगा, लेकिन दिन ब दिन हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब जो है वो पिसता जा रहा है। बेहतर इब्राहिम का शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तब आपको बताएं, जामपुर के मौसा हीरो में दरियाए सिंध के मुकाम पर बनाया जाने वाला स्टील पुल महकमा हाईवे की गफलत के बायस टूट गया। जामपुर और जुतोई के दरमियान 3 अजला के मुसाफिर शदीद परेशान होकर रह गए। पुल के टूटने के बायस मुसाफिर दरियाए सिंध को अबूर करने के लिए कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर हो गए। स्टील पुल महकमा हाईवे की गफलत के सबब टूट गया है। जामपुर और जुतोई के दरमियान 3 अजला के मुसाफिर शदीद परेशान होकर रह गए हैं। पुल के टूटने के बायस मुसाफिर दरियाए सिंध को अबूर करने के लिए कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर हैं। डीडी खान में एक्साइज डिपार्टमेंट का जनरल होल्ड अप, 10 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को एक्साइज दफ्तर में बंद कर दिया गया। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी, डेरा गाजी खान में एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और जिनके टोकन शॉर्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। जनरल होल्ड अप किया जा रहा है डायरेक्टर एक्साइज की खसूसी हिदायत पर। डाट पुल पर और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एक्साइज टीमें मौजूद हैं और जो भी बिला नंबरी गाड़ी है उनको एक्साइज दफ्तर में बंद किया जा रहा है। टोकन टैक्स जो डिफ़ॉल्टर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बात करते हैं सर, अब तक कितनी गाड़ियाँ बंद की जा चुकी हैं और क्या पैगाम देंगे आज के इस जनरल होल्ड अप के हवाले से? जनरल होल्ड अप के सिलसिले में ये है कि ये डायरेक्टर साहब के ऑर्डर्स हैं, वीकली हम जनरल होल्ड अप कर रहे हैं ताकि जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो उनकी रजिस्ट्रेशन हो और जो जिनके टोकन शॉर्ट हैं वो लोग अपना टोकन अपडेट करवाएं। ठीक है। कितनी सर अब तक गाड़ियां अंदर हो चुकी हैं? अब तक सुबह से टोकन और अनरजिस्टर्ड गाड़ियां जिनके इस सिलसिले में 10-12 गाड़ियां हमने बंद की हैं। बाकी कुछ लोगों से जिनके साथ फैमिलीज़ होती हैं उनसे ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस या NIC लेके उनको वार्निंग दे दी जाती है कि भाई वो नेक्स्ट डे आके अपना टोकन पे करें या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाएं। जी, जो भी बिला नंबरी गाड़ी शहर में चलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10 से ज़ायद गाड़ियां जो है एक्साइज दफ्तर में एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बंद कर दी गई हैं। शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड ब्रिज की तसानीब का काम शुरू हो गया। ओवरहेड ब्रिज की तसानीब का काम कई माह से ताखीर का शिकार था। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद है। मुजफ्फरगढ़ का एक कदीमी रेलवे स्टेशन है ये। इस वक्त जो है वो पीछे अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ओवरहेड ब्रिज की तनसीब का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता 1.5 साल से ये मंसूबा जो है वो ताखीर का शिकार था। ओवरहेड ब्रिज को लगाने का मकसद ये, इस हवाले से हमारी रेलवे स्टेशन इंतजामिया से बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ओवरहेड ब्रिज जो है वो मुसाफिरों के लिए और यहाँ के मकामी अफराद की क्रॉसिंग के लिए जो है बनाया जा रहा है। ओवरहेड ब्रिज लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब एक ही ट्रैक पर जो है वो 2 मुख्तलिफ साइड से ट्रेनें आती हैं तो मुसाफिरों का रश जो है वो रेलवे स्टेशन पर और रेलवे ट्रैक पर जो है वो बढ़ जाता था। अब इस रश को कम करने के लिए मुसाफिर और यहाँ से जो गुजरने वाले शहरी हैं जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं वो ओवरहेड ब्रिज का जो इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से जब हमारी मकामी अफराद से बात हुई तो मकामी अफराद की जानिब से ये कहा गया है कि ओवरहेड ब्रिज की तनसीब का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए क्योंकि रेलवे की पट्टियों के अतराफ में क्रॉसिंग की वजह से मुतादिद हादसा जो वो रोनुमा होते थे। इस हवाले से बेहतर आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तलबा महफूज, मुस्तकबिल मजबूत। एजुकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान के बच्चों को हादसा से बचाने के लिए ऐसे इक़दाम स्कूलों के बाहर रोड सेफ्टी असिस्टेंट तैनात कर दिए गए। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट देखिए।
स्कूलों के बच्चों को हादसा से बचाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहम इकदाम सामने आ गया। अहम तरीन शाहराहों पर कायम 50 से ज्यादा स्कूलों के बाहर रोड सेफ्टी असिस्टेंट तैनात कर दिए गए। जो बच्चे छोटे हैं और जो स्कूल ऑन रोड हैं, वहाँ पर बच्चों की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए इनको पाबंद किया गया है कि सुबह ये बच्चों को सड़क क्रॉस करा के स्कूल लेके जाएंगे और जब छुट्टी होगी तो ये रोड क्रॉस खुद करवाएंगे और बच्चों को इस मामले में अवेयरनेस भी देंगे। डिप्टी डीओ सिटी स्कूल सुल्ताना असलम राना का कहना था कि रोड क्रॉस कराने के साथ साथ रोड सेफ्टी असिस्टेंट बच्चों की हिफाजत भी करेंगे। पहले हमें रोड क्रॉस करना नहीं आता, अब ये अंकल हमें रोड क्रॉस करवाएंगे। आज इन अंकल हमें रोड क्रॉस हुआ है, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गया है कि बच्चों को जो है ना गवर्नमेंट रोड कैसे क्रॉस कराना है। बच्चे बहुत परेशान होते थे रोड क्रॉस करने में। स्कूल के बच्चे भी रोड सेफ्टी इंचार्ज से खुश नजर आए। प्रिंसिपल्स का कहना था कि बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है, सरकार इस पर काम भी कर रही है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। उधर मुल्तान में पीटीआई खवातीन विंग की जानिब से पार्टी खवातीन के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में साउथ पंजाब भर से खवातीन शरीक हुई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ खवातीन विंग जनूबी पंजाब की जानिब से जनूबी पंजाब की खवातीन के एजाज़ के अंदर तकरीब मुनक्किद की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात भी करेंगी। क्या कहेंगी? हमारा मकसद यहाँ था सिर्फ गेट टुगेदर, इकट्ठा होना, क्योंकि जब से हमारी तंजीमें तहलील हुई हैं तो हम सब खवातीन घरों में थोड़ी डिसार्ट, मेरी बहनें बैठी थी तो मैंने समझा क्यों ना हम सब एक गेट टुगेदर करें, हम सब इकट्ठे हों और आगे आने वाले बलदियाती इलेक्शन की तैयारियां करें और आगे जो तंजीमें बननी है उनके लिए भी हम तैयारी करें। और इंशाल्लाह ताला अगर किसी बहन को ओहदा नहीं भी मिलेगा, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सब मुत्तहिद हैं। आज हमने साबित किया है हम सब मुत्तहिद हैं, पूरा साउथ मुत्तहिद है और इंशाल्लाह ताला हम सब आइंदा भी मुत्तहिद रहेंगे और सब एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। ये जी इन्होंने मौसम बहार बना दिया है, एक जैसे गुले दोदी के वहाँ हुआ था इसी तरह इन्होंने आज ये फूल खिलाए हैं और माशाअल्लाह बहुत अच्छा इनका ये गेट टुगेदर रहा है और बहुत खुशी की बात है। ये सब हम इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, जो पार्टी खवातीन है यहाँ पर मौजूद है, जनूबी पंजाब भर से जो पार्टी खवातीन है वहाँ पर आई हैं और उनका कहना है कि पार्टी तंजीम ना होने की वजह से खवातीन जो है वो काफी अरसे से गैर फाल। जुनेद अनवर, शुक्रिया आपका। आप आगाह कर रहे थे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 8वें इंटरनेशनल सीरत कॉन्फ्रेंस का पहला रोज मुल्की और बैनुल-अक़वामी स्कॉलर्स की शिरकत। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की स्कॉलर्स की शिरकत यूनिवर्सिटी के लिए एहसास की बात है। तलबा और तालिबात को सीखने का मौका मिलेगा। इस हवाले से उनका मजीद का कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में 8वीं बैनुल-अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है उसका पहला दिन और इफ्तिताई सेशन कंडक्ट हुआ मेन ऑडिटोरियम में और इसमें तुर्की से हमारे इंटरनेशनल स्पीकर डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब थे। उसके अलावा नेशनल की लेवल के की नोट स्पीकर्स थे जिन्होंने सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। स्टूडेंट्स को जो कौमी वहदत और यकजहती है उसमें सीरत के हवालों से और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे उससे स्टूडेंट्स को आगाह किया ताकि वो अपनी ज़िंदगी, अपने कैरियर, अपने कैरेक्टर को उसी लाइन पे डेवलप कर सकें जो सीरत तैयबा में और कुरान पाक में। आज इस्लामी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लोधना पुलिस की जानिब से कम्युनिटी पुलिसिंग की जानिब से काबिल तहसीन इक़दाम। मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर शहरी तजावीज़ शिकायत बक्स नस्ब कर दिए गए। शहरी जराइम पेशा अनासिर और पुलिस के मुतालिक कोई भी शिकायत तजावीज़ इस बक्स में डाल सकते हैं। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ मकामात पर ये जो बक्सेस लगाए गए हैं उनमें शिकायत और तजावीज़ जो पेश की जाएंगी DPO लोधना के पास वो चाबी होगी और मेरे साथ DPO लोधना अब्दुल बाबर साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह से इसका आप फॉलोअप लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पब्लिक प्लेसेस पर हमने कंप्लेंट बॉक्सेस और ये लगाए हैं मुख्तलिफ जगहों पर 10 मकामात पर इनिशियली। इनका मकसद ये है कि हमारा ऑनलाइन सिस्टम भी है कंप्लेंट का, हमारा सिटीज़न पोर्टल पर भी हम फॉलो कर रहे हैं। फिर भी कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनमें पब्लिक सामने आकर कंप्लेंट करना जो है वो पसंद नहीं करती क्योंकि हॉस्टाइल एलिमेंट्स होते हैं, उनकी दुश्मनियाँ बनती हैं। तो इसके लिए हमने ये लगाए हैं कि जो बंदा सामने आकर कंप्लेंट नहीं कर सकता वो इस बॉक्स में अपनी कंप्लेंट डाल ले, उसकी पूरी सिक्रेसी रखी जाएगी और पूरा उसको फॉलोअप किया जाएगा। इसकी चाबियाँ मेरे पास होती हैं और मैं वीक में एक दिन यानी हर थर्सडे के थर्सडे
खुद जहाँ पहुँच सकता हूँ उसको खुद खोलता हूँ, और जहाँ पर खुद नहीं पहुँच सकता वहाँ पर मेरा पर्सनल स्टाफ जाता है इसको ओपन करके। हम इसकी कंप्लेंट को वहाँ से लेते हैं और फिर पूरा उस पर एक्शन किया जाता है। जी, शिकायत या तजावीज़ DPO लोधरा खुद मसूल करेंगे और उस पर नोटिस लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।